Hello everyone. We'll start with a topic called ionic equilibrium. Ionic equilibrium means what? Suppose this is acetic acid. It dissociates to form acetate ions and hydrogen ions. Okay, but these ions combine to form acetic acid again. So first there will be a forward reaction, and then there will be a backward reaction, and we'll get undissociated acetic acid back. We'll get undissociated acetic acid back. So when there is an equilibrium developed between ions and undissociated molecule, the equilibrium is called ionic equilibrium. Okay, तो पहले एसिडिक एसिड डिसोसिएट होगी, आयंस बनेगी, और आयंस कंबाइन होके एसिडिक एसिड में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे. So when there is an equilibrium developed between ions and undissociated molecule, such an equilibrium is called ionic equilibrium. ठीक है, so there exists an equilibrium between ions and undissociated molecule. This equilibrium is called as what? Ionic equilibrium. Now कौन से मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे? तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे दे विल गेट आयोनाइज. No, don't write any notes. I'll be sending you a PDF file in a question answer format, and everything will be there in that. So don't copy any notes. Only derivation and numericals will do online. Derivations आएंगे तो तुमको लिखना होगा. ठीक है ना? कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं? अभी अगर एक कंटेनर है और इसमें दो रॉड्स, ग्राफाइट रॉड्स डिप किए हुए हैं, अभी यहाँ पे मैं एक सब्सटेंस डालूंगा जैसे कॉपर सल्फेट. अभी जैसे ही मैं कॉपर सल्फेट डालता हूं, देखो व्हेन आई पुट कॉपर सल्फेट बल्ब ग्लो होता है. सो कॉपर सल्फेट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, कॉपर सल्फेट डालने के बाद बल्ब ग्लो हुआ. अभी कॉपर सल्फेट निकाल के मैंने यहाँ पे शुगर सोल्यूशन डाल दिया, और जैसे ही शुगर सोल्यूशन डालूंगा बल्ब बुझ गया, बल्ब डज नॉट ग्लो. So sugar is bad conductor and copper sulfate is good conductor. So substance which allows electric current to pass through are known as conductors or electrical conductors. Okay, now conductors are divided into two types. Either they can be metallic or electronic conductors, जैसे normally copper wire, aluminium wire, ये electricity conduct करते हैं, and all metals are generally good conductors. Okay, so they are called as conductors, but they do not undergo any chemical change when electricity pass through them. So metallic और electronic conductor में क्या फर्क होता है कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उनमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं रहेगा. कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वो कॉपर ही रहता है. पर अगर तुमने इलेक्ट्रोलाइट जैसे कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा. ओके, और उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट. सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो सब्सटेंस विल गेट डिकम्पोज एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो ऑल द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. Electrical conductors are of two types. Either they are metallic conductors or electrolytic conductors. Okay, now we'll talk about these electrolytic conductors. Electrolytic conductors or electrolyte are further divided into two types on basis of their strength. अगर strong है तो completely dissociate होगा तो strong electrolyte है. Okay, which ionizes or dissociate completely in aqueous solution. Their degree of dissociation is almost 1. ये सारे एसिड HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, bases like NaOH, KOH, calcium hydroxide, barium hydroxide,
salt, NaCl, potassium sulfate, okay, all acid, bases and all type of salt, all strong acid and bases and all types of salts are strong electrolyte. Now what are weak electrolytes? Abhi strong electrolyte almost completely ionize in aqueous solution. Weak electrolytes ionizes to a small extent in an aqueous solution, and their alpha is very very small. Alpha matlab degree of dissociation, and their degree of dissociation is very very small. All organic acids, formic acid, acetic acid, ammonia, amines, ammonium hydroxide, they all are weak bases. Okay, so all weak acid and bases are considered as weak electrolytes. So electrolytes are either strong or a weak. Okay, their degree of dissociation will be 1 or very very less than 1. अब ये degree of dissociation क्या होता है हम वो समझेंगे. So next part you are going to understand is degree of dissociation, degree of ionization and degree of dissociation. What is degree of ionization? Number of dissociated molecules upon total molecules of electrolyte before dissociation. Okay, number of dissociated molecules upon total number of molecules of electrolyte before dissociation. अभी समझो एसिडिक एसिड है ना, एसिडेड आयंस और 100 हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हुआ. अभी मैंने समझो 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे एसिडिक एसिड के, और इसमें से खाली 5 मॉलिक्यूल एसिडेड आयंस और हाइड्रोजन आयंस फॉर्म हुए. तो व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड? चलो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? ऋषभ भी रॉन्ग है और शिफा भी रॉन्ग है, जैन भी रॉन्ग है. मैंने ना फॉर्मूला है ना ऊपर लिखा हुआ है, तुम लोग फॉर्मूला क्यों नहीं देख रहे हो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने दिया है ऊपर देखो. शादाब, ऋषभ, शिफा, जैन एंड शादाब ऑल आर रॉन्ग. अभी भी रॉन्ग है. इस 79 साइंस कौन है? यश, शिफा अभी भी रॉन्ग है. शिफा फॉर्मूला दिया है ऊपर देखो. हाँ नेथन, ओके नेथन तुम नाम लिखो अपना. ओके, ionize number of dissociated molecules upon total number of molecules of electrolyte before dissociation. नहीं, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. एसिडिक एसिड कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए शादाब? एक मॉलिक्यूल. देखो यहाँ पे ना 5 एसिडेड आयंस बने हैं, 5 हाइड्रोजन आयन बने हैं. तो एसिडिक एसिड में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए होंगे? मृणाली इनकरेक्ट. 10. अगर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कंबाइन करोगे तो कितने HCl बनेंगे? आयशा करेक्ट है. देखो अगर एक एसिडिक एसिड लेते हो, ध्यान दो अभी सब लोग पहले सुनो. यहाँ पे एक एसिडिक एसिड दूंगा तो कितने एसिडेट और कितने हाइड्रोजन बनेंगे? एक एसिडिक एसिड लूंगा तो कितने एसिडेट और कितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे? हाँ 1 1. अगर मैंने 5 एसिडिक एसिड लिया तो कितने एसिडेट आयंस और कितने हाइड्रोजन आयंस बनेंगे? अगर मैं 5 एसिडिक एसिड, हाँ शिफा 5 एसिडिक एसिड लूंगा तो 5 एसिडेट और 5 हाइड्रोजन बनेंगे. ठीक है उमेरा, तो अभी मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए एसिडिक एसिड के?
एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए? हाँ 5, ठीक है ना। और मैंने टोटल कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? टोटल मॉलिक्यूल्स कितने लिए? 100। तो अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूल्स मेरे डिसोसिएट कितने हुए थे? 5। और टोटल मैंने कितना लिया है? 100। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? हाँ 0.05, ठीक है। अभी समझा कि नहीं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड करना है, तो कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए? तो मैंने 100 लिए थे, उसमें से अगर ये दोनों 5-5 बन रहे हैं, मतलब मेरे 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए। तो मेरे 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए और टोटल मैंने 100 लिए थे, तो 5/100 तो 0.05। अभी देखो HCl का, मैं 100 मॉलिक्यूल्स लेता हूं और ये दोनों 99 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? हाँ शादा, वेरी गुड। हाँ जैन समझा, वेरी नाइस। हाँ आयशा करेक्ट, शिफा करेक्ट, समझा सबको। अंगद, सैफुल्ला, अमृता, दिया, तुम लोग के आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? पार्ट लो। उमेमा, हाँ बशर, वेरी गुड। देखो, अगर यहाँ पे 99 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए और टोटल मैंने 100 लिया था, तो 0.99, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ ऋषभ करेक्ट, शादाब करेक्ट, आयशा करेक्ट, उमेमा करेक्ट, यश करेक्ट, बशर करेक्ट। अल्फा कभी भी मैक्सिमम अल्फा की लेस देन 100 नहीं। अंगद, अंगद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी ऑलवेज 1। शिफा करेक्ट, क्योंकि मैं जितना भी लूंगा, अगर मैंने 1000 लिया, 1000 के 1000 आयनाइज हो गए, तो 1000 molecule dissociated upon 1000 I had taken. So maximum value of alpha will be 1. Alpha can never go more than 1. Is it clear? अंगद समझा? मैं जितने यहाँ पे देखो क्या लिया है, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अपॉन टोटल टेकन। अगर मैं समझो 50 मॉलिक्यूल लेता हूं और 50 डिसोसिएट हो गए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी ऑलवेज 1। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखा था? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखा था कि अल्फा की वैल्यू 1 हुई तो वो स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो, ये एसिड्स, ये ही एसिड्स है जिनकी अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी। ये पर क्लोरिक एसिड है, HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4 और H3PO4। सिर्फ यही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में गिने जाते हैं और इनकी अल्फा की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ओके, और स्ट्रॉन्ग बेसिस में खाली ये 4 बेसिस याद रखने हैं, NaOH, KOH, CSOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ यही स्ट्रॉन्ग बेस है और यही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके अलावा सारे एसिड और बेस की अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। All acid and base will have alpha value less than 1. Only these acids are considered to be strong acid and these bases are considered to be a strong base. अभी देखो यहाँ पे HF नहीं है, HF is weak acid. HCl, HBr, HI strong acid. Sodium, potassium, cesium hydroxide strong base. Lithium is a weak base. Barium strong base. ठीक है ना? तो ये सबके खाली अल्फा वैल्यू 1 होती है। हाँ शादाब समझा? न्यूट्रलाइजेशन में ये कोई एसिड हुआ तो इनकी 13.7, पर सल्फ्यूरिक एसिड के लिए डबल और फॉस्फोरिक एसिड के लिए ट्रिपल हो जाएगी। सिमिलरली बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए डबल हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड, ऋषभ वो सॉल्ट हो गया, और सॉल्ट में हम लोग अल्फा वैल्यू 1 ले सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। इनके जो सॉल्ट होंगे ना, इनके जो सॉल्ट होंगे ना, उनकी अल्फा वैल्यू 1 होगी। ऋषभ,
और सॉल्ट का डिसोसिएशन कंपेयर टू एसिड एंड बेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। सर अब बशर, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या रिएक्ट होगा? ये कोई भी रिएक्ट कर सकता है ना, वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक एसिड वीक बेस भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड भी रिएक्ट कर सकता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, समझो अगर हमने HCl और NaOH को रिएक्ट किया, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो हमको NaCl और वाटर मिलेगा ना, तो दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर, नथिंग लाइक दैट। पर ये जब डिसोसिएट होंगे ना, पानी में डालोगे तो ये 100% आयोनाइज होंगे, ये 100% ऐसे देखो, जैसे HCl मैंने 99% आयोनाइज बताया है, 0.99, तो ऑलमोस्ट 1 हो गया कि नहीं इसकी अल्फा की वैल्यू। तो जैसे ही पानी में डालोगे HCl, तो 99 हाइड्रोजन 99 क्लोराइड ऐसे प्रोड्यूस करेगा वो, 100% डिसोसिएट होगा ऑलमोस्ट। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की 1 है, और ये मैक्सिमम वैल्यू देंगे। हाँ बशर देखो ना, ये 0.99 इज व्हाट 1, 0.99 इज व्हाट ऑलमोस्ट 1 ना, और एसिडिक एसिड में देखो कितना है 0.005, तो यहाँ पे अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, और यहाँ पे 0.99 इज 1 ऑलमोस्ट, ठीक है। 100 में से 99 डिसोसिएट हो गया, खाली एक ही रह गया, एक रिवर्स हो गया होगा यहाँ पे वापस, बस बाकी सारे के सारे डिसोसिएट हो गए। ओके, सो 0.99 इज नथिंग बट 1। इज इट क्लियर? एवरीबडी इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। आयशा कॉन्सेप्ट समझा ये वाला? शिफा, उमेमा, न्यूट्रलाइजेशन थर्मोडायनामिक्स में हमको ये चाहिए, ये एसिड्स और ये बेस की वैल्यू हमेशा इनको न्यूट्रलाइज करोगे तो 13.6, हाँ 13 पॉइंट वो वाला। ओके ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, ध्यान दो। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में नेचर ऑफ सल्यूट, अभी कैसा सल्यूट होता है? एट नॉर्मल डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ अल्फा इज नियरली 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, मतलब सॉल्ट ऋषभ, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड्स में अल्फा की वैल्यू नियरली 1 हो जाती है, और अगर वो कोवेलेंट है तो उनकी अल्फा की वैल्यू बहुत ही लो होती है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, ओके, और इसलिए सारी ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड में गिनी जाती है। तो आयोनिक कंपाउंड अल्फा इज 1, कोवेलेंट कंपाउंड अल्फाज आर वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। अभी ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड तुम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग लिखते हैं के एयर हैज अ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट कैन सेपरेट टू चार्जेस टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एयर को लेते हैं, एयर हैज अ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और लिक्विड्स में हम वाटर को लेते हैं, वाटर इज द मोस्ट पावरफुल आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, इट्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज हाईएस्ट। तो वाटर में अगर तुमने जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला, तो एक सोडियम बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, एक क्लोराइड बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाएगा, और उनको दूर दूर लेके जाएंगे। ये मैंने तुमको स्टेट्स ऑफ मैटर में समझाया था, आयन डाइपोल इंटरएक्शन में, कि जैसे ही सॉल्ट को पानी में डालते हो, हाँ मोस्ट आयोनाइजिंग गैसेस। हाँ बशर क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हारा? बशर ओके ओके ठीक है। ओके, सॉल्वेंट में वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है,
हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर बहुत सारे सब्सटेंस को कुछ ना कुछ अमाउंट एक्सटेंट से डिसॉल्व कर लेता है। ओके, और इसीलिए वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। और रीजन है वाटर हैज अ वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो नेचर ऑफ सॉल्यूट में समझा, आयोनिक कंपाउंड्स में अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्वेंट अच्छा होगा, तो उसमें अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाएगी। और वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन, अभी ये बताओ कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होती है कि डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होती है? कौन टेल मी, concentrated electrolyte are strong electrolyte or dilute electrolyte are strong electrolyte? हाँ चलो, यश, शिफा, जैन, यू आर करेक्ट। बाकी सबको नहीं समझा? शादाब, कॉन्सेंट्रेटेड मोर आयोन्स। ओके ठीक है, अभी देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट होगी उसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कैसे कंपेयर करते हैं? उसकी अल्फा की वैल्यू से। अगर अल्फा की वैल्यू 1 आई मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 आई मतलब वो वीक है। ठीक है, अभी देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना अल्फा की वैल्यू 1 आती जाएगी। अभी शादाब कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं कि ये कंटेनर में पानी है, इसमें मैंने एसिडिक एसिड डाला। ठीक है, एसिडिक एसिड आयोनाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिडेड आयंस और हाइड्रोजन आयंस। अभी आयंस पास में है, पानी कम था ना, तो आयंस पास में है और रिवर्स रिएक्शन बढ़ते जाएगा तो कम आयंस प्रोड्यूस हुए। अभी इसमें मैं और पानी डाल दूंगा, समझो मैं जैसे ही पानी डाल दूंगा तो क्या होगा? ये एसिडेड आयंस और हाइड्रोजन आयंस दूर दूर चले गए। जैसे आयंस दूर चले गए तो रिवर्स रिएक्शन कम हो जाएगा और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतने आयंस दूर दूर जाते जाएंगे, रिवर्स रिएक्शन कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वीक होते हैं और डाइल्यूट एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। एवरीबडी फॉलोड, जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे और उसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अल्फा 1 हो गया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वीकेस्ट एसिड बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे। अभी तुम लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा है करोसिवनेस से। जब कोई एसिड हाथ पे गिरता है और हाथ जल जाता है, तुम लोग बोलते हो बहुत स्ट्रॉन्ग है एसिड, तो वो अलग प्रॉपर्टी है, वो एसिड की प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं करोसिव। अभी देखो मैंने HF तुमको जानबूझ के HF बताया था। हाँ, HF जानबूझ के मैंने समझाया था कि HF एक वीक एसिड है पर HF हाईली करोसिव है। HF को तुम हाइड्रोजन फ्लोराइड को ग्लास बॉटल में रखोगे तो ग्लास बॉटल भी डिसॉल्व हो जाती है, हाथ पे गिरेगा हाथ जल जाएगा। पर HF आयोनाइज नहीं होता है, HF कम आयंस प्रोड्यूस करता है। हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं एसिड हाथ पे गिरा हाथ जल गया तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है वो, पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो उसका करोसिवनेस है। एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है हम उसकी अल्फा वैल्यू से बताते हैं। तो केमिस्ट्री में एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसकी अल्फा की वैल्यू। जितने ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितने ज्यादा आयंस वो प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ना कि वो हाथ जला के नहीं जला। ओके, HF हाथ पे गिरेगा हाथ जल जाएगा, पर केमिस्ट्री के हिसाब से वो वीक एसिड है क्योंकि वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। पर HF इज अ करोसिव एसिड, तो करोसिव एक अलग प्रॉपर्टी है और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एक अलग प्रॉपर्टी है। एवरीबडी गॉट इट? सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दैट। ओके, हमारी लैंग्वेज में हम एसिड को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। ये देखने के बाद
हाथ जला के नहीं जला. So that is a different concept. वो corrosive है. और केमिस्ट्री में हम एसिड को स्ट्रॉन्ग है कि वीक है किसके बेसिस पे देखेंगे, जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस किया उतना एसिड स्ट्रॉन्ग है. ओके, नाउ व्हाट विल बी रिलेशन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी. व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके, बशर टेम्परेचर बढ़ाने से अगर एसिडिक एसिड को मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, आयंस और टूटेंगे और एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स और टूटते जाएंगे. विल गेट मोर एंड मोर आयंस and alpha value will increase. So alpha is directly proportional to temperature. So everybody got all these factors: degree of dissociation, nature of solute. Ionic compound alpha is always 1, and covalent compound mein alpha values will be less than 1. नहीं then increase with increase in temperature. हाँ? Nature of solvent, जिसका dielectric constant ज्यादा वो solvent अच्छा. Okay. Concentration, alpha is inversely proportional to concentration, directly proportional to volume or dilution, and alpha is directly proportional to temperature. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा आयंस क्रिएट होंगे, उतना अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ओके, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ, एसिड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट. अभी एसिड बेस की 3 थियोरी हमको करनी है. पहली थियोरी हम करेंगे अरेनियस थियोरी. नाउ व्हाट इज अरेनियस थियोरी. अरेनियस के हिसाब से एसिड कब होता है कोई सब्सटेंस, जब एसिड को पानी में डालोगे वो H+ प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिड है. सो एनी सब्सटेंस विच डिसोसिएट in water and produces hydrogen ions, when dissolved in water produces hydrogen ions, then it is called acid. कोई भी सब्सटेंस को पानी में डालोगे और वो OH ions प्रोड्यूस करेगा तो वो बेस है. So base is any substance which give OH ions, hydroxyl ions when dissolved in water. So acid is any substance which produce hydrogen ions. Base is any substance which produce hydroxyl ions in an aqueous medium. When dissolved in water मतलब aqueous medium. अभी general neutralization क्या होता है, when acid reacts with base to form salt and water, ये neutralization होता है. पर Arrhenius के हिसाब से when hydrogen ions of acid combines with hydroxyl ions of base to form unionized water molecule, then it is called neutralization. So Arrhenius का definition of neutralization is hydrogen ions of acid combines with hydroxyl ions of base to form unionized water molecule, then it is called neutralization. तो definition, 3 definition यहाँ पे learn करने हैं. Arrhenius acid, any substance which gives hydrogen ions when dissolved in water are called acids. Any substance which gives hydroxyl ions when dissolved in water are called bases. Neutralization, when hydrogen ions of acid combines with hydroxyl ions of base to form unionized water molecule, then it is called neutralization. Is it clear up till here?